Hello, students. Welcome to Supergrads, and I am your English mentor, Sana ma'am. And I welcome you to this very interesting series, IP Math Indoor PYQs. And today we will be taking up questions on paracompletion. Yes, I know that paracompletion is something that has been giving you nightmares. So many students very often have come to me asking me what are the right ways to crack paracompletion. So don't you fret. Here I am. All right. So I'll be solving all the questions that have appeared in the previous year papers. Okay. I will be starting with the year 2020. Of course, I've jumbled them up, right? So they are in no set order. एंड यस 2020 से लेके 23 तक चलेंगे जो लेटेस्ट पेपर है and of course I'm sure you will enjoy a lot. You will learn the nuances, the technicalities of attempting paracompletion through all these questions, right? So at the outset, let me tell you that paracompletion में definitely you must have an approach. आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को क्रैक करते हैं. एंड फॉर ऑल ऑफ यू जिनको इसमें प्रॉब्लम है, वेल यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस सीरीज. कई ऐसी सीरीज आई हैं जिसमें मैंने पैरा कंप्लीशन कवर करवाया है पहले. सो आई थिंक यू मस्ट चेक दैट आउट. उसमें मैंने डिटेल में पॉइंट्स लिखवाए हैं. एज ऑफ नाउ, yes, I am only going to solve the questions, but yes, even through questions I will explain you in a fashion that you will get the hang of the topic really well. Okay, so let's start. दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. ये इंदौर 21 में आया था. ध्यान से क्वेश्चन को देखिए. मैं चाहती हूँ दैट यू नो यू गिव इट अ पॉज. दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन. यू गिव इट अ पॉज एंड ट्राई टू क्रैक इट ऑन योर ओन. Okay, done. I hope you've done the needful. All right, so let's do it. See, para completion, what is really important is that you have to understand the idea flow. एंड किसी भी ऑप्शन को आप एवे ही नहीं चुन लेते हो, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ही फिट इन हो सकता है. होने को तो फिर सभी आ जाएगा. ऑप्शंस आपको बहुत क्लोज मिलते हैं. यू डोंट गेट वन इज द नॉर्थ, द अदर इज द साउथ. योर ऑप्शंस आर नॉट पोल्स अपार्ट, दे आर रियली क्लोज. सो ऑब्वियसली आप डिसाइड किस तरह से करोगे. यू विल सी why do I need to fit in this one, this option in the blank? Does it satisfy the adjacent ideas? And is there any logical precedent to it? Okay, if I feel that here there is a blank, okay, so इसके फौरन पहले जो बात हो रही है, पहली बात तो वो अच्छे से satisfy होनी चाहिए. Okay, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे अनवांटेड लग रही है, अननेसेसरी लग रही है, आउट ऑफ स्कोप लग रही है, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट ऑप्शन, राइट? And of course, an option which is closely aligned with the theme of the passage as well as also satisfies the tone of the passage would be the best fit. तो हमें बहुत सारे factors देखने होते हैं, उसके हिसाब से हम choice करते हैं अपनी आंसर की, राइट? तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी तो ज्यादा सही समझ आएगा. लेट्स टेक दिस अप. Captive breeding has helped revive wildlife such as the Eurasian beaver, the cheetah, and the Arabian onyx. तो कैप्टिविस्ट, जब आप किसी को एक किसी एनक्लोजर में उसको बंद रखते हैं, बट देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रीड देम, तो थोड़े से आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट में रहेगा तो यू विल हैव नो कंट्रोल. तो थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम जब एनिमल्स को रियर करते हैं, उनको ब्रीड करने की कोशिश करते हैं, उससे ऑफ कोर्स कुछ जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो रिवाइव हो गई है. आपको एग्जांपल्स के साथ बताया गया. Several species have been reintroduced into locations in order that the ecological balance is restored, and then of course they were reintroduced into their locations ताकि वो जो balance है वो सही रहे, right? When herbivorous bandicoots were set free in the wild, they dug the ground and redistributed dry leaves and branches, reducing the chance of bushfires. तो बड़ा फायदा हुआ कि जब बैंडिकूट्स जो एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, थोड़े रेयर स्पीशीज होते हैं, ओके, जब उनको रिलीज किया गया वाइल्ड में, एंड दे वर या हर्बिवोरस, सो व्हाट दे डिड, उन्होंने ड्राई लीव्स और ब्रांचेस को इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि फायर्स जो लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स, बुश फायर्स, उनकी जो है चांसेस, उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई. सो दिस टर्न्ड आउट टू बी व्हाट, बेनिफिशियल इन अ वे. बट लेकिन some predators may overhunt or threaten other vulnerable species. Now the point is यहाँ पे तो आपको कुछ beneficial
हो गया, राइट, एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जानवर जो प्रेडेटर्स हों, जो दूसरों को खाते हो, दूसरे जानवरों को, मतलब हियर वी आर पॉइंटिंग आउट टू द कार्निवोरस एनिमल्स। हो सकता है कि जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके केस में क्या हो जाए, दिस मे बी अ लिटिल काउंटर प्रोडक्टिव, राइट, दे मे ट्राई टू थ्रेटन अदर वल्नरेबल स्पीशीज। अब यहाँ पे फुल स्टॉप होके अब ब्लैंक आ गया। तो एक जगह उन्होंने हर्बिवोरस एनिमल्स को लेके क्या पॉजिटिव आउटकम है वो बताया, कार्निवोरस एनिमल्स को लेके स्लाइटली जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, hence wildlife conservationists should revive more of herbivorous animals and enrich the ecosystems. Well, I would say A option जो है is coming out more like a conclusion of it, right? आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसा वो बोल रहे हैं hence करके, so looks like more of a conclusion. डू यू थिंक दिस वुड बी अ वैलिड कंक्लूजन? क्या ऐसा पैसेज हमारा बोल रहा है कि आपको मतलब सिर्फ हर्बिवोरस एनिमल्स जो हैं उनको ही ज्यादा करना चाहिए और कार्निवोरस को नहीं? क्योंकि कार्निवोरस एनिमल के बारे में एक पॉसिबल या प्लॉजिबल नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने बताया, बट सर्टेनली आप देखोगे कि this does not look like a balanced continuation of the idea, because this cannot even be inferred in this case, so this would not be logical. Certainly above everything para completion हुआ, para jumble हुआ, passages हुए, fill in the blanks हुए, ultimately logic का तो गेम है, logic is of paramount value here. Fine, so ये logically नहीं नजर आता हमको कि हम ऐसा नेगेटिव बात करें या ऐसा कंपैरिजन की बात करें कि हर्बिवोरस को ज्यादा, कार्निवोरस को कम, क्योंकि ऐसा इंटेंशन है नहीं स्पीकर का। कंजर्वेशन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स इज कॉम्प्लेक्स एंड कुड बी डेंजरस टू मेनी अदर वल्नरेबल स्पीशीज। ओके, नाउ द पॉइंट इज दिस लुक्स अ लिटिल टू नेगेटिव, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि while this is there बट उन्होंने ये बोला है मे करके, may overhunt or threaten other vulnerable species. This is one of the possible negative outcomes. At one end उन्होंने हर्बिवोरस की बात करी, फिर उन्होंने कार्निवोरस की भी बात करी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलें कि कंजर्वेशन ऑफ दिस is complex and could be dangerous to so many other vulnerable species. In fact देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक उसी का रेपिटेशन ही नहीं हो जाता, आपको लगता? ठीक है, look at this. The revival of the ecosystem therefore depends on the eating habits of the animals introduced therein. ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि एक तरह से हमको बता रहा है कि इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, या ना आप ये देखो कि कौन हर्बिवोरस है कौन कार्निवोरस है, उस तरीके से you will have to see their eating habits and thereby you will have to go about in making such actions. तो this looks a little more logical, this looks too negative, or might even be something like merely a reiteration of what was given. अब आइडिया को आगे भी तो बढ़ना है, आइडिया वहीं पे नहीं अटका रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि इसीलिए आपको ईटिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो अ की फैक्टर दैट वी हैव टू चाइम इन। ओके, डी देखिए, देयरफॉर आई लाइक दिस ऑप्शन, आई पुट अ स्मॉल टिक, बी भी ठीक था, कोई बहुत बुरा नहीं था, डी देखते हैं। Therefore, all species must be revived and allowed to live in forests regardless of their being carnivorous. This is a big no-no. ये तो completely out of scope है। Out of scope in the sense कि मतलब logical नहीं है। Out of scope नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि कैसे बोल रहा है कि regardless of their habits, तो फिर ये पूरे डिस्कशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, समझ रहे हो आप? तो डी गया। What about A? ए भी हम पहले ही बोल चुके हैं कि ए भी बेकार है। अब हम अगर बी और सी की बात करें तो एज आई ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि सी जो है पूरे थीम को एक फाइनल कंक्लूजन पे लेकर आ रहा है, जो भी पूरी बातें हुई हैं पैसेज में उसको फाइनली इट इज कंप्लीटिंग द पैराग्राफ। ओके, इट्स मोर ऑफ अ कंक्लूजन, व्हाइल बी इज मियरली रीइटरेशन ऑफ व्हाट इज गिवन. Hence, if I have to compare both these options, I would certainly feel that C would be a better choice because it is pulling all the threads together and coming to a conclusion. Do you see the difference? ठीक है ना? This is the reason why the better answer here is C. C is the answer. Challenging था ये question, लेकिन आप समझ गए कैसे किया? While B was a very close choice, but हमने C को चुना क्योंकि C ज्यादा अच्छे से
हमें पैराग्राफ को कंक्लूड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, कि रिवाइवल ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज वी स्टार्टेड विद दैट, वो तभी हो पाएगा जब आप पहले तो अच्छे से ईटिंग हैबिट्स देख लो, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स देखोगे उस हिसाब से ही यू विल हैव टू टेक अ कॉल, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन number 2, which is from Indore 23, IP Mat Indore 23 का question. There's a blank in the beginning. Okay. फिर ये बोलता है conflicts are now brewing over rivers and river basins shared by many countries around the world. This is not unexpected given the fact that more than 200 water bodies are shared by 2 or more countries. Strife over water, for example, is erupting throughout the Middle East from the watersheds of the Nile to the Tigris and Euphrates rivers. Sorry. अब ये एसेंशियली आपको बता रहा है वाटर स्केर्सिटी के बारे में और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई हैं, ठीक है, रिवर्स के ऊपर, रिवर बेसिन्स के ऊपर, और वो बोल रहा है कि भाई दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड. ठीक, तो आप बताओ कि क्या सही ब्लैंक होना चाहिए, समथिंग दैट starts the discussion, and यहाँ पे जब ये सेंटेंस मेरा एंड होगा सो इट शुड seamlessly integrate with what is coming ahead. ठीक है, तो पैरा कंप्लीशन में हम यही करते हैं. सो एक बार ऑप्शंस देखें. With water becoming increasingly scarce and development of new sources of water extremely costly, international water tensions are expected to rise. Looks good. Introduces the theme of water scarcity. And while this is talking about some things like, it is costly to develop new sources, it's a slightly new thing, but it is not off the mark. ये related है उस चीज से, और ये आपको इंपॉर्टेंस बता रही है पानी की कि भाई नए सोर्सेस हम डेवलप कर नहीं सकते, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट. पानी की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी हो रही है, राइट. तो इसीलिए इंटरनेशनल वाटर टेंशंस तो होंगे, इट्स इनएविटेबल. और इसके फौरन बाद वो जब बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रू अप कर रही हैं रिवर्स और रिवर बेसिन्स पे, तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से लॉजिकली आइडिया कंटिन्यू होता है. सो आई लाइक इट. आई पुट अ स्मॉल टिक हियर. लेट्स एनीवे एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस. B बोलता है it might be a cliche but given how scarce it is, water is the new oil of the 21st century. अब ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है वाटर की, बता रहा है कि वाटर स्केर्सिटी, सो इट डेफिनेटली टचेस अपॉन द थीम, द ब्रॉड थीम दैट इज वाटर स्केर्सिटी. बट दैट्स नॉट ऑल. It's also drawing a parallel, an unnecessary parallel of comparing it with the oil. इसके अलावा एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो मिसिंग है इसमें, वो ये है कॉन्फ्लिक्ट्स. किसके थ्रू ना क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं. तो आप अगर ए और बी में देखोगे तो डेफिनेटली ए है, ज्यादा अलाइंड है विद द पैसेज, राइट. सो ए लुक्स बेटर टू मी. See, fresh water is increasingly in short supply, with nearly 2/3 of the global population living in water-stressed conditions. अब ये स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर के बारे में बात करने लग गया है, ठीक है. एंड it's talking about so many people living in water stress conditions, again highlighting on water scarcity. But then हमारा जो पैसेज है वो जेनेरिक लाइंस पे बात कर रहा है. इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, इट्स टॉकिंग अबाउट वाटर इन जनरल, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये फ्रेश वाटर पे बात करके उसको अननेसेसरली स्पेसिफिक डोमेन में ले जा रहा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए हम सी को एलिमिनेट करेंगे. D. The world does not consider water to be the scarce resource it is. Okay, ये तो हो ही नहीं सकता. ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि people realize water is scarce, that's the reason they are fighting over it. So this is obviously contradictory or contrary to what the passage says. Hence D delta तो ना हो पाएगा. तो आप देख लो, क्लियरली समझ में आ रहा है बेस्ट चॉइस क्या होगी. A. Simple. A is your right answer. I hope this much is clear. Fine. So लॉजिकली चलना है, आइडिया फ्लो समझना है, देखना है सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन होगा. फाइन. स्कोप को सेटिस्फाई करते हुए चलें, ठीक है, एंड सीमलेसली वो इंटीग्रेट हो जाए. कुछ अगेन आई एम रिपीटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं पिछले मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो वीडियोस, यू विल गेट मोर इनसाइट्स. फाइन. अभी के लिए दिस मच शुड सफाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये आईपी मैट इंदौर 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो देखते हैं यहां पर। ये कहता है पोस्टपोन्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, द टोक्यो ओलंपिक्स आर सेट टू बिगिन दिस ईयर, द लोकल्स आर वेरी, द एथलीट्स आर एंशियस। ध्यान दीजिए, अल्टीमेटली एक ओलंपिक्स ही तो है। अब ओलंपिक्स में इतने ज्यादा टेंशन क्यों है, लोग बाग वैरी क्यों है, बहुत कॉशियस क्यों है, एथलीट्स एंशियस क्यों है, वरिड क्यों है। ट्रेनिंग सेशंस आर ट्रंकेटेड, ट्रेनिंग सेशंस को भी कट शॉर्ट कर दिया गया है, ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस एक्सटेंसिवली और लेंदी वे में नहीं हो रहे। एंड restrictions are extensive, there are restrictions also that are taking place, obviously कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, which has not been told to us, and there's a blank. Yet Japan in many ways is seen as a safe choice, ठीक है। सेफ चॉइस मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डेंजर्स हैं, बट फिर भी जापान पे भरोसा किया जा सकता है, ये एक सेफ चॉइस है। क्यों, वाई एट ऑल? Because of its past experience of hosting big events. It has an impeccable reputation for discipline and the ability to deliver the goods. Okay, बहुत अच्छी उसकी reputation है और वो deliver करते हैं जो वो promise करते हैं, और discipline वगैरह बहुत बढ़िया है। So, इस blank में क्या fit हो सकता है? You've understood the theme, you've understood कि कुछ है, there's something which is causing everybody a lot of anxiety and there are worries. Okay, but still Japan is a safe choice. Options देखते हैं। The Japanese are anxious but ready to welcome the athletes. Doesn't really add any value to the paragraph. Looks like a very superfluous one. वही चीज रिपीट कर दी एक तरीके से। भाई आइडिया आगे तो बढ़े, राइट? ऐसा कुछ हो बीच में जो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर पाए, यहां से भी कनेक्टेड हो और यहां को भी सेटिस्फाई करे। अब ये ए से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कि जैप को ही रिपीट कर दिया, जापानीज एंशियस है। ओके, the shadow of the pandemic looms large over the Tokyo Olympics. Wow, yes. Don't you think now everything starts making sense? Yeah, we were talking about pandemic, COVID हुआ और उसके फौरन बाद ओलंपिक्स हो रहे जापान में. That's the reason why everybody is worried. That's the reason why training sessions have been truncated. ठीक है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं इतने ज्यादा, और ये डेंजर लेकिन अभी भी है, डेंजर तो बना रहेगा कोविड का, बट देन इट सेज फिर भी जापान जो है वो सेफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन, ठीक है, एंड दे deliver what they promise. So B beta looks like an ideal choice to me. Still, we will explore other options. C बोलता है the International Olympic Committee has fully supported the Tokyo Games. Irrelevant लगता है, बिल्कुल irrelevant लगता है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई सपोर्ट वाली बात नहीं हो रही है, तो ब्लैंक के पहले ब्लैंक के बाद में क्या बात हो रही है उसका बहुत वेटेज होता है। Japan is going through an economic recession and could run out of funds. अब यार ये इलॉजिकल लगता है, क्योंकि रिसेशन का इससे क्या लेना देना? देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू। डेफिनेटली आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स बी बीटा। Question 4. Nowadays, many teenagers and young adults around the world have to spend most of their time studying in order to get top grades. इंदौर 22 का ये क्वेश्चन है, आईपी मैट इंदौर का, ठीक है। A university place and a good job, and there's a blank. There are several causes for this situation, one of the main ones being exams. These are stressful experiences, and most students take a huge number of them during their school career. So, this is this entire paragraph. Okay. अब बीच में जो ब्लैंक है, you'll have to satisfy this. Obviously, पहले क्या बात हो रही है, बाद में क्या बात हो रही है, देखो, अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। ऑफ कोर्स पहले यही बता रहे हैं कि कितना ज्यादा दे एंड अप स्पेंडिंग सो मच टाइम इन स्टडीइंग सो दैट दे कैन गेट टॉप ग्रेड्स, ओके, एंड फिर वो कॉजेस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस फिट इन करके देखना है, दैट्स द बेस्ट वे। ए देखते हैं, फॉर दिस रीजन द एजुकेशन सिस्टम हैज टू चेंज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। अ लिटिल टू डायरेक्ट, अ लिटिल टू एक्सट्रीम, अ लिटिल टू सडन मैं बोलूंगी। व्हाई? रीजन इज सिंपल एंड क्लियर।
देखो फॉरेन से तुम ये बोलने लग गए कि यार इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना है, तो आई वुड से कि कुछ और बेटर भी आ सकता था। पहले तो आप अभी आगे कॉजेस भी वो बता रहा है, पहले इंसान कॉजेस समझेगा, फिर उसके बाद में सोचेगा, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करेगा कैसे चेंज किया जा सकता है। सडनली यू टॉक अबाउट चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम, तो उतना फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके फौरन बाद में फिर आप कॉजेस लेके आओगे। Immediately after this, when you start like talking about the causes, I think this is going to be a jump and this doesn't sink in well. एक बार ऑप्शन बी देखते हैं। For this reason, there is often little time left for hobbies or socializing. क्या बी फिट हो सकता है? Certainly. लॉजिकली इससे तो फॉरन, इसके फॉरन बाद बी बीटा आ सकता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टडीइंग, all right, and they have to get a good job, they have to get good place in the university, so that's the reason why उनके पास में socializing के लिए टाइम नहीं होता है, ना ही वो अपनी हॉबीज को परस्यू कर पाते हैं। सो दिस इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दिस, लेकिन क्या ये वाला एंड सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है ना वे। You first tell about a problem, then you tell about the causes. Okay? There are several causes for this, और main one क्या हो गया उनके एग्जाम, ये स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एग्जाम्स लेते हैं ड्यूरिंग देयर करियर, तो आई थिंक बी फिट इन हो जाएगा। अगर मैं ए बोलूं तो मैं ए को यहाँ पे अगर डाल के देखूं तो फिर उसके फौरन बाद में आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, या अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, वो बाद में आएगा। आइडियली स्पीकिंग ए यहां आ सकता था, बट यहां बीच में ए आना, यू टॉक अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, देन यू से इट मस्ट चेंज, देन यू अगेन start talking negative. This is no idea flow. You have to understand it has to be continuous. ठीक है? All right. See, therefore, studying while you're exhausted is unproductive, completely irrelevant. यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम एग्जॉस्टेड हो तो मत पढ़ो। यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना ज्यादातर समय जो है वो स्टडीज में ही लगाते रहते हैं, तो ये सी जो है वो लॉजिकल नहीं होगा। डी, therefore it would be better to learn how to apply the knowledge gained. Where are we talking about application aspect? ये कुछ एजुकेशन से तो रिलेटेड है बट बिल्कुल ही irrelevant है, क्योंकि here we are not talking about that they are only bookworms, or they only have theoretical knowledge, they don't have any practical insights. We're not talking about anything on those lines, so certainly ये आपका eliminate हो जाएगा। आंसर क्या होगा? क्लियरली बेस्ट चॉइस क्या हो जाएगी आप खुद बता सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आंसर इज बी बीटा। ठीक, सो आई वेरी मच होप दैट you are getting a good hang of the topic already. Let's try out a few more questions. Let's crack some of them. Indore 2020 ka ek question. Because I can sense that I'll not be able to complete all of them, so I'm cherry picking the questions here so that I can complete it in the stipulated time. Yeah. Question 7. Samar, a young man from a village in Tripura, is a social media star who hopes to make it big as a model and actor. While his minute-long videos are very popular, his series titled Who Wore It Better showcases his creative side. He uses a variety of filters and visual effects to improve his videos. ठीक है, अब यहां पे आ गया एक ब्लैंक, बताइए क्या आना चाहिए अब। तो समर के बारे में बता रहे हैं, त्रिपुरा का एक बंदा किस तरीके से वो एक गांव का बंदा है लेकिन सोशल मीडिया स्टार बन गया है, why is he popular, and he's even able to showcase his creative side. It is clear that short videos are very popular among the youth. No, this is not what we are discussing. This is absolutely off the mark. हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस पॉपुलर है, कुछ और पॉपुलर है, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेज यंग men मेक मनी ऑन द इंटरनेट. Nowhere are we talking about how much money does he make. Rather टोन इसका पॉजिटिव ही है, और मनी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं है, बात ही नहीं हुई है पैसे की, तो अब सडनली आप एक ऐसा एलिमेंट क्यों लेके आ जाओगे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में है ही नहीं।
It is possible to be popular on the internet, although making money here is difficult. Again, why are we talking about money? ठीक है? And this is not the angle that you can be popular, but you may not be able to make money. We don't have any inkling of whether he's raking some money or not, whether he's making it or not. हमें पता ही नहीं वो पैसा कितना बना रहा है, नहीं बना रहा, ज्यादा बना रहा है. We have no idea. This shows how it is possible today for people with limited resources to express their creativity. ठीक है? आपको नहीं लगता ये बहुत ही बढ़िया चॉइस है? ये इंस्टेंस एक बताता है कि कैसे कम रिसोर्सेस के साथ गांव में रहने वाला बंदा है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उसके साथ उसके उन सेटबैक्स के बावजूद भी people today can express their creative side. Yeah, so I think बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा. Is this clear? Let's take up another one from Indore 2020. एक्चुअली 23 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है. आई टोल्ड यू दिस येस्टरडे ऑल्सो. तो अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज लास्ट ईयर का पेपर जो फुली सॉल्व है आईवी मैट इंदौर 2023, प्लीज गो थ्रू दैट. इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा मैं दूसरे ईयर के क्वेश्चंस उठा लूं ताकि आपको बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज मिल जाए. ओके, ऑलराइट, कमिंग टू दिस वन. When people move from one city or country to another, the spread of diseases may result. People often bring in germs which may not have been present there before. These new germs can spread quickly, okay, and cause previously unknown diseases. तो यही कह रहा है कि जब एक सिटी से एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह लोग जाते हैं, जर्म्स बहुत ज्यादा फैलाते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से स्प्रेड ऑफ डिजीज हो सकता है. ठीक है ना? अब एक ब्लैंक आ जाता है. They become ill more easily and could even die. In turn, newcomers may catch diseases which were not present where they came from. अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी दूसरी कंट्री जा रही हूं तो मैं ही बीमारियां फैलाऊंगी वहां पे. ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वहां जाऊं तो वहां की कोई बीमारी मुझे लग सकती है, गॉड फॉरबिड, जो हमारे यहाँ नहीं होती थी, राइट? जो हमारी जगह नहीं थी. So person is even susceptible. It's both ways, right? So you can catch a disease and you can actually spread a disease both ways. तो अभी blank में क्या आ सकता है? Let's have a look. If they had gone back, they would have started an epidemic. Okay. Now the point is कि I don't think so this would make that much sense. क्योंकि अब यहाँ पे they become, इसके फौरन बाद they become more ill आ जाएगा and could even die. तो ये जो सेंटेंस है वो ill हो जाएंगे more easily और मर भी सकते हैं. तो वो ए से नहीं जा सकता क्योंकि ए बिल्कुल अलग बात करे कि अगर वो वापस चले जाएं तो हो सकता है कि एक एपिडेमिक ही फैला दें, वो महामारी फैला दें. तो क्योंकि ये ब्लैंक में कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस बात को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, तो इसके फौरन बाद ये वाला सेंटेंस डजंट मेक सेंस. बी देखते हैं. पोल्यूशन ऑल्सो कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज ये सिर्फ एकदम इसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, पोल्यूशन को लेकर आ गया. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन क्लास, सो दिस सर्टेनली डजंट मेक सेंस. If a germ is completely new to a region, people have no natural protection against it. Now, this is interesting. आपको नहीं लगता? यहाँ पे देखिए, अगर इस ब्लैंक में इसको फिट करने की हम कोशिश करें तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये नए जर्म्स हैं, ठीक है, और ये बहुत जल्दी फैल सकते हैं और इससे नई नई डिजीजेस हो सकते हैं. और वो कह रहे हैं कि अगर ये जर्म बिल्कुल ही न्यू है, मतलब इसका कोई वेरिएंट भी नहीं है, कुछ बिल्कुल ही नया है एक रीजन में, तो क्या हो जाता है? पीपल हैव नो नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट. तो लोग जो है उनके पास में वो कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा, उनके इम्यून सिस्टम में उसका कोई ट्रेस नहीं होगा. आपको पता ही होगा, ये थोड़ी बहुत साइंस है कि व्हेन योर बॉडी फाइट्स विद सम वायरसेस तो शायद उस वायरस का कोई ट्रेस भी आपके
उसमें इम्यून सिस्टम में रह जाता है, जो हेल्प करता है आगे उस सिमिलर चीज से फाइट करने में। बट यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जर्म बिल्कुल ही नया है तो फिर आपकी बॉडी जो है उसके मतलब उसका कोई नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए वो और आसानी से बीमार हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। सी इज द आंसर। इजंट दिस ब्रिलियंट? डी क्या बोलते हैं, such changes may result in enhancing conditions for people who live in big cities. What is this rubbish? बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन। आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप सही निकाल पाए थे? इसका आंसर सी है, एंड आई थिंक दिस इज सच अ नाइस वन, राइट? So class, that was all for today. I kept it brief, I kept it short because I wanted to give you an overview of how it goes. Fine. And कोशिश करेंगे हम कि आगे भी चल के आपके लिए कुछ कुछ अच्छा लेते आए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और आपका एग्जाम बेस्ट हो। दिस इज आवर सिंसियर एफर्ट टू हेल्प यू in the maximum possible way that we can. And thank you so much for watching us. Bye bye. I'm signing off. Catch you tomorrow. कल जरूर आना है, कल ग्रामर होगी।